चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के बहुप्रतीक्षित आयोजन 11वें चंडीगढ़ इंटरनेशनल लिट फेस्ट लिटरेरी का 2 दिन का उत्सव साहित्य, संगीत, सिनेमा के रसिकों के लिए बेहद दिलचस्प रहा। 3 दिन और 30 से ज्यादा कला, साहित्य, सिनेमा के दिग्गजों ने मानो चंडीगढ़ की आबो हवा में अलग सा रस घोल दिया। पहले दिन यानी 24 दिसंबर उद्घाटन की शाम सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार गौरव गुप्ता ने चंडीगढ़ के रसिकों को जी भर के गुदगुदाया, हंसाया। 25 नवंबर यानी दूसरे दिन दिग्गज कबीर बेदी से चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के चेयरपर्सन और फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर सुमिता मिश्रा के संवाद ने एक अभिनेता के जीवन के कई अनछुए पन्ने पलटे। It's a book that dives much beyond the glitz and glamour of filmdom. It's really a very honest mirror to your psyche, to your life. But why must? Many reasons. With respect to my own book, Sumita, what's my story really? My story is the story of a Punjabi boy from Delhi, who goes to Bombay and without even planning or wanting to be an actor professionally, enters Bollywood, goes on to becoming a major star in Europe, goes on to Hollywood, with many extraordinary relationships along the way, many triumphs, tragedies, milestones, mistakes. But my problem was when you have a graph of 3 continents, 3 film industries, countless films, extraordinary people met, extraordinary relationships, etc. How do I tell my story in less than 700 pages? And nobody reads 700 pages books anymore. I mean, there might be a few, but fast dying breed. 1.5 दर्जन से ऊपर वक्ताओं ने लिटरेरी के मंच की शोभा बढ़ाई, जिसमें शामिल रहे प्रमथ राज सिन्हा, रुद्रांशु मुखर्जी, मीरा चड्ढा बोरवंकर, बलबीर माधोपुरी, रेणुका सिंह, राकेश गोस्वामी, लखविंदर एस जोहाल, मनमोहन सिंह, बब्बू तीर, महेश दत्तानी, अश्विनी अय्यर तिवारी, प्रगति तिवारी, अफान वेसवी, मंजरी चतुर्वेदी, पंडित अभय सोपोरी, सुप्रसिद्ध लेखक अश्विन सांघी ने अपनी अनोखी बातचीत से दर्शकों का मन मोहा तो स्तब्ध भी किया। If knowledge, wisdom, learning, science, music, art, poetry, culture or literature is your thing, then Saraswati. And if it is power or overcoming negativity or the banishing of ignorance, then Kali is the one you need. Today I bow my head to every manifestation of Ma Shakti and thank her for every word she has inspired me to write thus far. तीसरे दिन यानी 26 नवंबर को साहित्य जगत के दिग्गज ममता कालिया, बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री, माधव कौशिक से इतर अमीश और भावना रॉय ने लिटरेरी के मंच से साहित्य और उसके वर्तमान के कई ज्वलंत मुद्दों पर खड़ी खड़ी बात रखी। Okay, it's one of the sad things I think that Indians today, especially modern educated Indians, are so ignorant or so dismissive of so much that is already there in our ancient science, astronomy, medicine, wellness, literature. So do you think this is because of this whole Macaulay constructed modern education, English-based education system we have? Any thoughts on educational reform that should at least teach Indians something about India and its own wealth? I couldn't agree more on this, something I'm deeply passionate about. I'm very happy to hear that. We need to decolonize our education system. Our entire education system, the entire frame is पढ़ा लिखा के किसी तरह बच्चे को अंग्रेज बना दो. That's the no aim connect of our, to our own, no connect to no our culture connect. at all. So, how many have studied maths, at least till the 10th standard? Everyone, I assume. Yeah? You've heard of Pythagoras theorem? Yeah? Yeah. Who had actually discovered Pythagoras theorem? It's not Pythagoras. Let me make it easy for you. Who had actually discovered it? You'll have No, to tell not us. Aryabhata. Bodhayana. Oh. Okay? It's written in the Shilpa Sutras at least 200 years earlier.
Okay, everyone. This fact is recognized by the West today, but not Indian textbooks. I'm a BSc Maths graduate, and Western mathematicians have accepted it. Okay, another pop quiz. How many have heard of the Fibonacci series? Yeah, everybody. Everyone? You would have studied it in school. Who discovered the Fibonacci series? Again, obvious, it's not Fibonacci. Who discovered it? It was discovered in India. Probably Pingala. Okay, he probably discovered it. Fibonacci himself did not plagiarize. In his own book, he wrote it as the India series. Oh. He did not plagiarize. He actually acknowledged his source. But I mean, I've never. Post that, Europeans very smoothly Yes, changed it, and we Indians, of course, यार गोरे ने बोला होगा तो सही होगा. सही बात है. Correct. भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व फेस्टिवल की आयोजक डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बतौर कवियत्री अपनी कविताओं से श्रोताओं के दिल को झंकृत किया. तो ये एक कविता है जिसका शीर्षक है मेरा मजहब. तो दिस इज माय क्रीड. जिससे करनी थी तौबा वही खुद ब खुद खुदा बन गया. जिससे करनी थी तौबा वही खुद ब खुद खुदा बन गया. मेरे मजहब में मोहब्बत को किसी भी सूरत कुफ्र नहीं मानते. वो अंधेरे बेचते रहे, वो अंधेरे बेचते रहे, हमने रोशनी दी बेमोल. जैसे को तैसा हमारे यहाँ नेक दिली नहीं मानते. जब कायनात ही सारी तोहफा है फिर होड़ किससे. जब कायनात ही सारी तोहफा है फिर होड़ किससे. कम भी काफ़ी है, कम भी काफ़ी है. हम खुद को हर खुशी का हकदार नहीं मानते. झूठ और मक्कारी, गौर फरमाएंगे, झूठ और मक्कारी के पायदान चढ़ के बुलंदियां जो पाए. झूठ और मक्कारी के पायदान चढ़कर बुलंदियां जो पाए, ऐसे बंदे को मेरे जहां में कोई सिकंदर नहीं मानते. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. मुश्किलों में मायने मिलते हैं, मुश्किलों में मायने मिलते हैं अपने और हकीकत दोनों के. मुश्किलों में मायने मिलते हैं अपने और हकीकत दोनों के. किनारों पे खेलने को हम मुलाकातें ज़िंदगी नहीं मानते. वाह, वाह. बहुत बढ़िया. और आखिरी शेर है, वो शायर मेरी रूह पे जो लिख रहा है, वो शायर मेरी रूह पे जो लिख रहा है वही शब्द है. वो शायर मेरी रूह पर जो लिख रहा है वही शब्द है. बाकी किसी नज्म को हम शायरी नहीं मानते. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. श्रोताओं की मांग पर हाल ही में प्रकाशित उनकी कृति लम्हों की शबनम से कई मार्मिक रचनाओं के पाठ ने लिटरेरी की सफलता को अलग ऊंचाई दी. इस दौरान चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के चेयरपर्सन और फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हमने सिटी ब्यूटीफुल में भारत और विदेश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की मेजबानी का एक शानदार दशक पूरा कर लिया है. हमारा उद्देश्य और सपना हमेशा चंडीगढ़ को साहित्य प्रेमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना और फेस्टिवल के लिए चंडीगढ़ की आधुनिक और जीवंत भावना को प्रतिबिंबित करना रहा है. चंडीगढ़ इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल लिटरेरी 2023 के 11वें संस्करण में चंडीगढ़ शहर में गगनभेदी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुआ.